audible, whether that video is audible or not. So I'm playing it. For the record, we are recording this session, and so that other students can also watch it later. Yeah. Here it goes. Transportation in animals and plants. Hello friends. I know all of you like riddles. So let me ask you a few riddles. Go and call your friends also. It will be a lot of fun. So tell me, I am big at places and small at some. I give you fresh air. I give you food too. Guess who am I? Come on, think. I अभी यहाँ पे एक रिडल पूछा गया है. Good morning, sir. Good morning. Hello friends. Also, food too. Guess who am I? एक रिडल पूछा गया है आपसे. You have to tell me what will be the answer of this riddle. Very good. Plant. Very good. So the answer of this question is plant. This riddle is plant. I'm reading it so that you can also listen to it. I am big at places. मैं कुछ जगह पर बड़ा होता हूँ. And small at some. और कुछ जगह पर छोटा होता हूँ. I give you fresh air. मैं आपको फ्रेश हवा देता हूँ. I give you food too. मैं आपको फूड भी देता हूँ. Guess who am I? तो बताइए मैं कौन हूँ. तो Plant. यस, प्लांट्स या ट्रीज कुछ भी कह सकते हैं हम. जो ट्रीज होते हैं वो हमें फूड देते हैं. जो प्लांट्स होते हैं हमें कुछ एडिबल जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं, जैसे कि पालक है, उसमें हम लीव्स जो होते हैं उसको खाते हैं. जैसे कैरेट है, रेडिश है, उसमें हम जो रूट होती है उसको खाते हैं. जो पोटैटो होता है उसमें पोटैटो में हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं या जो फ्रूट होता है उसको खाते हैं. Fruit. फ्रूट. Stem. स्टेम. पोटैटो के प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो एडिबल होता है. कैसे? जो पोटैटो होता है आपका आलू, उसका कौन सा पार्ट जो है एडिबल होता है. Root. Sir, root. आर यू श्योर. Root. Yes, sir. No, sir, stem. ओके, सो फाइंड इट आउट. Root or fruit. रूट होता है या फ्रूट होता है. Root. Sir, I think root. ठीक है, आप थोड़ा सा इस चीज़ को सर्च करना. आई वॉन्ट यू टू सर्च इट. थोड़ा सा बुक्स वगैरह देखो, कहीं से ढूंढ के लाओ इस क्वेश्चन को. ये मेरी तरफ से आपको एक रिडल है. चलिए आगे बात करते हैं. चलिए. Come on, think. I am a plant. This next riddle is a little difficult. There are 5 alphabets in my name. Everyone likes my fruit. There are a lot of varieties of mine. There is a big seed inside me. There are 5 alphabets. ये second riddle है. There are 5 Mango. alphabets. Okay. Sir, mango. Okay. Let's find out. Think and tell me. Mango. Very good. Isn't it fun? Come on now. Guess the answer to this last riddle. I am the regional flute of Kerala. There are 7 alphabet in its name. The outer layer of this flute is very hard. The one who breaks it is very strong.
regional fruit of Kerala. Coconut. There are Coconut. 7 alphabets in Coconut. my name. Very good. Coconut. The outer layer of this fruit Coconut. is very hard. Very good. The one who breaks it is very strong. Could you think? Coconut. Friends, did you recognize me? I am Podmal. Why are all of you laughing? I also have a name. These are my friends. We are of various kinds. There are around 30 lakh kinds of species of plants in the world. तो plants के जो different species हैं, around 30 lakh species are there in the world. Big, small, or huge, like the trees. I am feeling very hungry, and it is a very hot day today. I am thirsty too. You would be thinking that plants also need food and water. All of you must have studied ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि हमें भूख लगती है, तो क्या प्लांट्स होते हैं उनको भी भूख लगती है क्या? तो प्लांट्स अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं, तो उसके बारे में भी ये जो वीडियो में आपको बता रहे हैं. चलिए देखते हैं उसको. that the green leaves in plants make food by the process of photosynthesis. जो प्लांट्स की ग्रीन लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो प्लांट होता है उसके लिए फूड बनाती है. Similarly, it is important to transport food to the other parts of the plant. जैसे कि हम आपने पढ़ा था कि ब्लड जो है वो क्या काम करता है, पूरी बॉडी के अंदर हमारा जो फूड है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. तो ऐसे ही क्या प्लांट्स के अंदर के जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो वाटर है, जो फूड है, वो अलग अलग जगहों पे ट्रांसपोर्ट होता है. इसी को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं. To remain alive, we need water also. Otherwise, we will wither away. प्लांट्स को सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की चीज़ किसकी जो ज़रूरत होती है, दैट इज़ वाटर. तो जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट के लिए. तो ऐसी जगह हैं, ऐसी हैबिटेट्स जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पर जो प्लांट्स है वो भी आपको नहीं देखने को मिलते. But have you ever thought about how we drink water? We do not have any glass or straw. Let us find about the answers to such. अब ये जो प्लांट है ये बोल रहा है कि हमारे आप तो जैसे अपने माउथ से पानी पी लेते हैं, हमारे पास कोई स्ट्रॉ भी नहीं होती, तो हम पानी कैसे पिएं? तो हमें पानी के लिए, पानी तो बहुत ज़रूरी होता है हमारी सर्वाइवल के लिए, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रॉ नहीं होती. चलिए अभी हम पता करते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये किस तरीके से अपना जो पानी है उसको पीते. Question from this video. The objective of this video is to understand. Look, their garden is in this house. Their mother is really fond of plants. Look, their garden is so beautiful and green. She really takes good care of us. She waters us on time, provides manure, keeps us in adequate sunlight. देखिए प्लांट. Yes, I am also a plant in their garden. Come, I am also a plant in adequate sunlight. Yes, I am also a plant in adequate sunlight. Yes, I am also. She waters us on time, provides manure, keeps us in adequate sun. जो वाटर जो प्लांट है उसको सर्वाइवल के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, उसको अच्छे से रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पानी की ज़रूरत होती है. दूसरा मैन्योर या मैन्योर की ज़रूरत होती है. मैन्योर क्या होता है आपका, जो मैन्योर को क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज़ मैन्योर? So waste material of that is not that is edible, but their pins like pins of banana. When we
out of the we store it in a compost pit and then make वेरी manure for the गुड, plants. वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड द कंपोस्ट. कंपोस्ट जो मैन्योर होता है बेसिकली ये आपके जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उनको उनसे बनता है. जैसे गोबर से आपने सुना भी होगा कि गोबर की खाद बन जाती है अगर उसको काफ़ी टाइम तक खुले में रख दिया जाए, उस पर थोड़ा पानी वगैरह डाला जाए. तो कंपोस्टिंग से भी हम खाद बनाते हैं. तो मैन्योर जो बेसिकली क्या होता है, खाद होता है जो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बढ़ा देता है और उससे आपका जो प्लांट है या आपके जो भी आपका ट्री वगैरह है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है. चलिए आगे देखते हैं. अब अगर अभी किसी को कुछ डिस्कस करना है तो बता दीजिए. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. और तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है सनलाइट. तो वाटर, मैन्योर और सनलाइट, अगर ये चीजें किसी को भी प्लांट को भी मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे से वो ग्रो करेगा. Sir, air. एयर इज ऑल्सो नेसेसरी. Sunlight. Yes. एयर जो है वो अवेलेबल ही होती है ऑलमोस्ट हर जगह, इसलिए उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है. ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको जो चेंज किए जा सकते हैं. जैसे वाटर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, और मैन्योर डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं. और सनलाइट, अगर आपने प्लांट को किसी ऐसी जगह पे रख दिया, शेडेड जगह पे रख दिया जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच रही है तो वो अपना खाना नहीं बना पाएगा. तो ऐसे एयर जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट रहती है. Yes, I am also a plant in their garden. Come, let us go inside their house. Let us find out to what mischief Geeta and Ramesh are up to today. You know, Ramesh is very naughty. He's always troubling Geeta. Ramesh, look, I have kept a few flowers in the flower vase. You keep your ball away from it. If it falls, then I will complain to father. Wow, these are such beautiful white flowers. Mother, where are you? Look, my pen isn't working. Oh Ramesh, the way you are shaking your pen, if some ink spills by mistake and stains the wall, then father will get very angry. Look now, the ink has spilled. Weren't we scared of the same thing? Now quickly go and get a mop. Let us quickly wipe it. Didi, look, the water in the flower vase has also become red. It looks like a few drops of the red ink fell in the water too. Oh no! Children, come. अभी एक जो बच्चा है उसका पेन खराब हो गया था तो उसने ऐसे उसको हिलाकर उसको जो इंक है उसकी इंक जो है बाहर आ गई पेन से. तो ऐसा होने पर हुआ क्या कि अभी चल रही है, चाहिए. Come and eat your dinner. अभी देखते हैं सब. 11 बजे. तो उसकी जो इंक है, कुछ जो इंक का पार्ट है इट ड्रॉप्ड इनटू द मग, जो जिसके अंदर जो बाउल है उसके अंदर फ्लावर्स लगाए हुए थे, उसके अंदर भी जो वाटर है वो चला गया. तो उसके बाद क्या होगा उस वाटर से फ्लावर्स के ऊपर, वो हम देखने की कोशिश करते हैं. Now, you have to go to school tomorrow. Eat quickly and go to sleep. Let us go, Ramesh. We shall look at this later. Did you notice, friends? The water in the flower vase became red. What do you think? What will happen till the morning? We shall find out in the morning. तो ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा सुबह तक. अभी तो वो दोनों बच्चे तो सोने चले गए हैं, तो उस वाटर से क्या होगा उसके अंदर, प्लांट्स के अंदर या फ्लावर्स के अंदर, वो अब देखते हैं. Children, get up. It is morning. Get ready soon. Oh, how have the stem and the petals turned red?
जो स्टेम था उसका, प्लांट्स का या फ्लावर्स का, और जो फ्लावर्स के जो पेटल्स थे वो भी क्या हो जाएंगे, इंक के तरीके से, इंक से ही, इंक जैसा इंक का कलर था वैसे ही वो कलर अडॉप्ट कर देंगे और वो भी रेड हो जाएंगे। Ramesh, come here quickly. What happened, Didi? Why are you shouting in the morning? Ramesh, look at this. Oh, yes. How did this happen? How did the petals become red? Do you remember yesterday, because of your mischief, a few drops of the red ink had fallen into the vase? Yes, I remember. But how did this red color travel to the flower? Did a magician come here last night? अब ये पूछ रहे हैं कि ये चलिए ठीक है, हमने रात को इसमें इंक डाल दी थी, तो इससे क्या हुआ कि ऐसा क्या हो गया कि ये जो फ्लावर है, इसके पेटल्स हैं, ये रेड हो गए, जो इसका स्टेम है ये रेड हो गया। क्या कोई जादूगर आया था जिसने ऐसा कर दिया? Shall we take the flower vase to school? We shall show it to all our friends. Maybe we are able to find out the reason. Friends, I am sure you're astonished. The ink which had leaked from Ramesh's pen got mixed with the water in the vase, because of which water became red. The whole night the stems of these flowers had kept their factory open. In the factory, the red-colored water was pulled up by the stems. Come, let us find out. जो वाटर था वो रेड हो गया था, तो जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर को इनटेक करती हैं फूड प्रोडक्शन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइट तो है नहीं, तो फूड प्रोडक्शन के लिए जो वाटर है वो कहाँ से लेगी। तो जो लीव्स हैं वो क्या करेगा, वाटर को पुल किया उन्होंने और अपने तक लेके आई हैं। मे बी दे माइट हैव गॉट सम लाइट ओवर देयर, उनको शायद कुछ लाइट मिल गया होगा, नहीं भी मिला तो जो स्टेम है उसने क्या किया, वाटर को जो है अपने अंदर से, वाटर क्या, स्टेम क्या होता है, एक होलो पाइप के जैसा होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है जो मिनरल्स होते हैं, रूट्स जो एब्जॉर्ब करती हैं उनको, जो बाकी पार्ट्स होते हैं आपके प्लांट के लीव्स तक, जो है उसको, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सॉइल से मिलने वाला वाटर है, फूड पार्ट जो है सॉइल से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स है, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आपके घर के अंदर जो ग्राउंड से वाटर जो है आपकी टंकी तक जाता है पाइपलाइन की हेल्प से, सिमिलर इसी तरीके से जो स्टेम होते हैं वो भी पाइप के तरीके के होते हैं, वो जो वाटर होता है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं वन पोजीशन टू अनदर। How do the children solve this riddle? Geeta, why have you brought the flower vase to school? Oh, how have the petals of the white flower become red? Friend, this is a magical flower. Oh, Ramesh, no friends. Actually, what had happened was that a few drops of red color had dropped in the water in the vase. When I saw it in the morning, the petals and the stems had become red. I think that the white flower likes the color red. It could be that this flower would be thinking that this red colored water is Ruh Afza and it would like it, so it must have drank it up. ये बोल रही है कि जो प्लांट है, जो फ्लावर है, इसने सोचा होगा कि ये जो पानी है, इसमें ये पानी नहीं है, ये रूह अफ़ज़ा है, और इसने इसलिए इसको पी लिया, और जैसे ही उसने पिया तो वो रेड हो गए। I think this thought of drinking water is right. It could be that the stem of this flower would have pulled in the red water and would have supplied water to the whole plant. तो जो जैसे रूट होती है, वो क्या करती है, जो पानी को एब्जॉर्ब करती है, उसको स्टेम तक पहुंचाती है, और स्टेम क्या काम करता है, उस वाटर को डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचा देता है। और यही बच्चा जो है वो यही चीज़ बोल रहा है कि रूट जो है, उस जो रूट तो जो स्टेम ने क्या किया होगा, पानी को एब्जॉर्ब किया होगा और उसको पेटल्स तक उसको पहुंचाने की कोशिश की होगी, या डिफरेंट पार्ट ऑफ जो प्लांट है उस तक पहुंचाने की कोशिश की होगी।
Yes, like the green leaves make food for the plant by process of photosynthesis. Similarly, the stems help in transportation of water. The children have guessed a few things. Children, what is going on? What is this, Geeta? It looks like an experiment of transportation of water in plants. ये बोल रहे हैं कि गीता आप ये क्या लेके आए हो, ये तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स का कोई एक्सपेरिमेंट लग रहा है। तो अब जो आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या किस तरीके से आपका जो प्लांट है वो काम करता है, किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द Children, the vascular देखिए इसको हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यूज। tissue present in the plant for the transportation of water and food in plants is known as xylem. जो प्लांट होते हैं उसके अंदर प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स। प्लांट्स के अंदर पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको सॉइल से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक। तो वेसल्स जो होते हैं उनको स्पेशल सेल्स से बने होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स से वो बने होते हैं। इन सेल्स से मिलकर बनते हैं टिश्यू। तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आप पढ़ोगे कि जो सेल होती है इट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे छोटे होते हैं सेल, फिर आपके बनते हैं टिश्यू, फिर उससे बनते हैं आपके ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो हम जो है बिल्कुल छोटे छोटे सेल से मिलके बने हैं और उन सेल्स को फर्दर जो है टिश्यू बनाए गए हैं और टिश्यू से फिर वो बने हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बने हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बने हैं आपके ऑर्गेनिजम्स। तो जो वेसल्स होते हैं प्लांट के अंदर देज आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग अ वस्कुलर टिश्यू। तो ये वस्कुलर टिश्यू बना रहे हैं। अब इन टिश्यूज के दो टाइप हैं। जो दो टाइप क्या कौन कौन से टाइप हैं? सबसे पहला जो आपने देखा अभी कि जाइलम, अभी टीचर जो है वो जाइलम के बारे में बता रही थी। जाइलम क्या काम करता है? जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को इन द प्लांट। जो प्लांट के अंदर वाटर All of you collect information about this and bring it. उसको ट्रांसपोर्ट करता है। एक बार फिर से देखते हैं। तो जाइलम जो है वो इनडायरेक्टली ट्रांसफर करता है वाटर को, मिनरल्स को लीव्स तक जो है उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है। Known as xylem. All of you collect information about this and bring it. Come on, children, open your books. Anyways, Ramesh, due to your mischief, we got to learn something new. But I want to know more about this topic. Come, let us quickly go home and then we can go to the library and find out more information. Friends, look at these tall trees. Have you ever wondered that how does water reach upwards in such tall trees? तो जो प्लांट है, अब ये प्लांट आपसे पूछ रहे हैं कि जो वाटर होता है वो इतने बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, कई ट्रीज तो 20-20, 30-30, 40-40 फीट के होते हैं। और जब आप माउंटेन एरिया में जाते हो तो और भी आपको बड़े बड़े ट्रीज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक मज़ेदार फैक्ट भी बताना चाहता हूँ कि आपको सर्च करना है कि जो सबसे लंबा ट्री है वर्ल्ड के अंदर उसकी हाइट क्या है। यू हैव टू फाइंड आउट कि जो टॉलेस्ट ट्री है, मैं आपको सर्च करके दिखा ही देता हूँ कि टॉलेस्ट ट्री जो है वो कितना बड़ा है। देखिए ये 115 मीटर का जो है ये ट्री है। 115 मीटर, समझ रहे हैं आप? देखिए यहाँ छोटे छोटे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कितने छोटे लग रहे हैं इसके सामने, ये देखिए। तो 115 मीटर जो है इसकी ट्री की जो है हाइट है। तो इस ट्री के जो पार्ट है, अंदर पार्ट्स हैं, अंदर जो है लीव्स तक जो वाटर है वो कैसे पहुंच पा रहा होगा उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उनके अंदर कैसे पानी जो है वो ऊपर तक पहुंच पाता है। Think about it. Didi, look at juice vendor is standing near the house. Come, let us drink some juice. Didi, looking at this flower vase, a lot of questions are cropping in my mind. Look at these tall trees. Like these flowers in the vase,
suck the water due to the xylem in their stems. Similarly, what would be the process in these trees? Do they also have xylem which helps them to transport water so high up? It is astonishing, Ramesh. Like we just now drank juice with the help of this straw, it could be that these trees have straws or long pipes. तो ये जैसे लड़की बोल रही हैं कि जैसे हम अभी स्ट्रॉ के ज़रिए जूस को पी रहे हैं, ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं इसके अंदर, ये जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, क्या इसके अंदर भी ऐसे आपके पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं वाटर को जो है ऊपर तक लेके जाने में? The question which Geeta and Ramesh asked is very nice. We just saw that both the children drank the juice with the straw, because of which the juice reached their mouth. Similarly, तो ये भी ट्री भी बोल रहा है कि जैसे उन्होंने स्ट्रॉ के हेल्प से जूस को पिया था, वैसे ही कुछ तरीके से हमारे अंदर भी मेरे अंदर भी जो वाटर है वो फ्लो करता है. अब देखिए ये ट्री क्या बोल रहा है, इसको ये सुनते हैं. the suction takes place in plants and trees. The water absorbed by the roots travels from the root hair, reaches the cells and then the xylem. तो जो वाटर है एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा, वो ट्रैवल करता है रूट से और ट्रैवल फ्रॉम द रूट हेयर, रीचेस द सेल्स एंड देन द xylem. तो वो कहाँ जाता है? रूट से जाता है सेल्स में और फिर उसके बाद जाता है आपके xylem में. Today we have to collect a lot of information about transportation in plants. Come Ramesh, let us go quickly as we have to go to the library too. Yes, Didi, I'm very excited too. Geeta and Ramesh are headed to the library. Friends, isn't it astonishing that there is transportation in plants too? देखिए एक जीसी बोस जो थे उन्होंने ये भी बताया था कि जो प्लांट्स हैं वो जो दर्द है उसको भी Be it small plants or big trees, to stay alive, we need food and water too. You all also try to do an experiment like this. Also, collect information about transportation in plants. We give you food, fresh air, flowers, shade on hot sunny days, and other things. We care for you and you care for us. I hope our friendship continues like this. Come on, you also go to the library with Geeta and Ramesh and collect a lot of information. Bye bye friends. आपने ये वीडियो देखा. यस, प्लांट्स को भी कुछ पेन जो है वो फील होता होगा. जी, एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फूड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर. तो सेम एक वस्कुलर टिश्यू होता है फ्लोएम, तो उसकी हेल्प से जो होता है जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर. जो ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम है प्लांट के अंदर वो जाइलम और फ्लोएम करते हैं. जाइलम आपका जो वाटर है, मिनरल्स है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम आपका फूड जो है फूड सब्सटेंसेस है उनको ट्रांसपोर्ट करता है. जी, इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये आज फिनिश हो गया है. इससे रिलेटेड वर्कशीट जो है आपको भेज दी जाएगी.